You're watching Newstainment Television. क्या बात है? So Superstitious released, Blinding Lights releasing, and more songs. Attention, Despacito, Eyes on Me, Perfect, Talking to the Moon, Peaches and Yesterday. इन गानों के बारे में, रिलीजिंग के बारे में कुछ शब्द कहें. क्या बोलना, आप लोगों ने देख ही लिया. I think he's immensely talented. You know, the legendary, his grandfather, the whole lineage is so strong कि आप imagine भी नहीं कर सकते. मामा हो, granddad हो, सब इतने talented. So God bless you. But I've heard him live, you know, in a personal. हम जब dinner पे थे एक दिन तो हमने सब चढ़ाया था रेगो को लंदन में कि you know sing. And ऐसा कोई genre नहीं है जो गा नहीं पाता, which is unbelievable. And at this age, 13 साल का है, but he's a rock star. He's truly a rock star. All my blessings, all my love to you, and I know you're going to kill it. And you know, the wonderful family that you come from, the love that you'll get, the love that you'll give, is what makes someone a star inside out. You know, and I think that you're blessed to have parents like this who are so loving, so caring. So wish you the very best, and I think what I wish for Han is what I wish for you. God bless. Thank you so much, Sunil Shetty जी. अब राजपाल यादव जी, आप इस रॉकस्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में क्या कहूँ? पहली बार इनको देखा तो 5 साल के थे गोविंद भाई लंदन में, और ये 5 साल में से 13 साल के हो गए. और ये इनके अंदर 5 साल 6 साल की अंदर जो ऊर्जा थी और इनके अंदर जो इंथू है ना, वो पहले ही बताता था कि पता नहीं बप्पी दा ने इन पे क्या कृपा की है कि इनका ऐसे ही खूब जैसे करना पता है कि पूरा खानदान जो है, और इनको इतनी ब्लेसिंग मिली है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और मुझे लगता है कि अब वो गुदड़ी का लाल से पता लग जाता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं. आई थिंक ये वर्ल्ड के रॉक स्टार हैं. थैंक यू. You would like to give Rego B about his future or anything? I think I'd like to take advice. कि ये उम्र में आप कैसे ऐसे मैनेज कर लेते हैं. Confidence, quality of voice, performance, you know, and like Dada said, I think he realized that the camera was playing, because even when we were together, जो गाए हिंदी में गाए, अंग्रेजी में गाए, you know, he's genuinely talented. So my advice will always be कि those lights that hit you in the eye, you know, can blind you. So just make sure that you stay away from that. You're a humble human being like your grandfather was and your uncle is. They both achieved a hell of a lot. Even your mama at a young age, Baba has achieved so much, but yet so humble. So I think this is that one legacy that you need to carry forward. You know, because there will be a lot of people who will be probably as talented as you are, but the difference is going to be being a man, being a humble man, and that's the difference between a man and a boy. आप कितना एक्साइटेड हो और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, मैं ये जानना चाहूँगा. ये जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता. दादू ने बोला था that why don't you do something different, because ब्लाइंडिंग लाइट्स एक पॉप रॉक है, पर मैंने रेगे जो फ्यूजन है, जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है, उनको वो गाने को मिक्स करके उन्होंने रिक्रिएट किया है. So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday is soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique. And this all came from my granddad because he only told me to do it. This is for Sunil Shetty. I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या उनको उतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं?
100%. You know, young generation के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन I think young generation जितने talented है, जितने honest है, शायद हम कभी नहीं थे. Of course, उन्हें knowledge और experience ज़्यादा है because they see so much. But socially बहुत conscious है ये young generation. I'm sure वो अपने talent के साथ साथ social reform करने की भी हमेशा कोशिश करेगा. I mean, शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही है कि सोशली वो उनकी कितनी मदद कर सके. वो थॉट में है. हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं. सच्चाई उनमें कूट के भरी हुई है. वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है. तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है. तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी. यू नो, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू स्प्रेड लव और दैट पॉजिटिव एनर्जी. यू नो, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है. यू नो, जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ पे पाबंदी है. दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है. इस पे पाबंदी है नहीं. 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसके साथ हाथ में फ़ोन दे देते हैं या आईपैड दे देते हैं, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं. जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है. तो आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड. देखो ये सामने आप बप्पी दादा जी को कितना मिस करते हैं इस इवेंट में, और उन्होंने आपको कुछ सलाह दी थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखो या कुछ आगे आने के लिए? I really miss Dadu a lot because if you would be here, then you would be very happy that all the songs have been made and they have been mastered and that's going to be released. So he would have been very happy. But he's there with us. He's physically not there, but he's always in our heart, and he'll always be known through his music, through his humbleness, through his simplicity, and through his kindness. So the advice that my grandpa gave it to Dadu gave it was to be humble, simple, and to respect elders. That was the only 3 things he used to tell me to do. Wherever you go, like if you become a huge pop star, rock star, that always be humble, be generous, give to people whatever they want, just entertain people. That's what my grandfather used to do, and that's what I will do. इस ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है और बहुत जल्दी इंडियन क्लासिकल का कवर भी निकलेगा, राइट? Hi, Reko over here, on your right side, this side, right side, yeah. Congratulations, you're simply amazing, and congratulations to the entire family, you know, like the Lahiri family. I just wanted to know, like, you are a replica of your, you know, Dadu. Yeah, मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो स्टाइल थी, यू नो, वो थोड़ा सा ज्वेलरी पहनते थे. अब यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल है, यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड सबने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, यू हैव दैट लुक where your dadu used to always, like he was inspired from Elvis Presley, yeah. तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई है, या mom and dad would like to answer on that? So my dress code, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes, and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है.
खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट? एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा। मेरा सवाल राजपाल जी से है। इधर सर, आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए। जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं। We are luckiest people in this earth कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। उसमें करोड़ों साइट्स हैं। चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही है कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हो, रेगो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं। तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है। कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है, तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो। मेरा सवाल है सर, एक वक्त हुआ करता था और माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग है ना बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफी आकर्षित हो रहे हैं। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े। आपको लगता नहीं क्या जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर, स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं। माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे इनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए। पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे। आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स आर गुड, ऑल प्रोफेशंस आर गुड, एंड आई थिंक भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है। शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया होगा। और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है। घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस। थैंक यू सर। जैसे आपके गाँव में हर एक बच्चा होता है, और आपने भी बच्चे की बात ही की, जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही हैं। कल इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहिए कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जिनके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो,
और उसमें एक दूसरे को रोज हग करें, रोज विश करें। जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरीडे लर्निंग डे, हम भी रोज सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे। लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है। इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए। Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना। I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना। You know, that for me is Valentine, and that's why yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, or a man or a woman, and a couple.